This is an ABP Life podcast. Alright, so first of all, a very happy new year to all the listeners of ABP Live podcast. I hope this new year brings all the joy and happiness you deserve. Now, since it's the new year season, we often get excited and make resolutions for the rest of the year. Like, we're gonna do this, we're gonna do that, we're gonna quit this, we're gonna quit that. Even I used to make resolutions, but I could never fulfill them. I never delivered on my resolutions. But my roommates, on the other hand, every year they make a resolution. However, they fail miserably to deliver on them, but they make it. And this year, my roommates have made a resolution to quit smoking. Now, I'm not much of a smoker, but I know for a fact that quitting cigarettes is one of the toughest things to do. My father's been trying to quit smoking for the last 30 years, and he hasn't been successful in it. But for those who are seriously considering to quit smoking, or at least lower the consumption, I may have some good news for you. Now, the Parliamentary Standing Committee on Health and Family Welfare has asked the government to put a ban on the sale of single cigarettes in the country. The committee has also proposed to increase the taxes on all tobacco products across the country. But now the question is, can these policies, can these initiatives really reduce the consumption of tobacco in the country? And also, does increasing the taxes on tobacco products really affect the consumers? So let's decode all of this today. But as I said, I'm not much of an expert on smoking or cigarettes. So health psychologist from Sri Gangaram Hospital, Dr. Sajila Maini, is joining us on the show today. So welcome to Clear Cut, only on ABP Live podcast. This is your newsman Rudrashish, and today let's talk about the ban on the sale of single cigarette sticks in India. So let's get started. So welcome to Clear Cut, Dr. Maini. It's a pleasure to have you on the show. Thank you very much. Now, Dr. Maini, the government has proposed a ban on the sale of single cigarette sticks. So it has been getting a lot of mixed reaction from the public. Some are saying it's a good step. Some are saying that it won't do any good to the society. What do you make out of this? It won't make much impact as I see, because this is not a topic that has been taken up now. It has been taken up some 2, 3, 4 years before also, and then also I was being covered by various channels for the one cigarette for the ban of loose cigarettes. So at that time also यही मुझे महसूस हुआ कि loose cigarettes का तभी यही था कि 1 सिगरेट 2 सिगरेट से इतना फर्क नहीं पड़ेगा. इनफैक्ट व्हाट आई वुड फील कि उससे सिगरेट बढ़ जाएगी. पीपल विल कंज्यूम मोर. You need to understand that why when a person buys 1 cigarette or 2 cigarettes, his intention is to keep it the level of cigarettes to a lower this thing. जैसे वो ज्यादा पैकेट्स खरीदेगा उसका सिगरेट का इंटेक बढ़ जाएगा. ठीक है, तो लोग because buying a cigarette is all an effort, जाके एक सिगरेट लेके आएंगे. तो sometimes people in the process of curtailing the cigarettes they buy in loose. And वो अगर पैक्स में खरीदेंगे तो they keep more cigarettes with them and cigarette का consumption reduce नहीं increase हो जाएगा मेरे हिसाब से. Exactly. I'm a boy in my early 20s, तो मुझे पता है कि एक बंदा मेरे रूममेट्स जब सिंगल सिगरेट खरीदने जाते हैं तो वो पी के वापस चले आते हैं. पर अगर वो अभी पूरा डिब्बा लेके आएंगे तो उनका इंटेक ज्यादा हो जाएगा. उनके पास बताया कि उनके पास स्टॉक है, तो वो एक के बाद एक स्मोक करते जाएंगे. एंड आई थिंक दिस विल इंक्रीज. और गवर्नमेंट ये सोच रही है कि लूज नहीं बेचेंगे तो फिर हमें बहुत ये फायदा हो जाएगा कि कुछ लोग नहीं खरीद पाएंगे. ऐसा नहीं है. सिगरेट हर रेंज में मिलती है. मतलब अगर ये नहीं है कि पैसे कम होंगे तो लोग नहीं खरीदेंगे, वो अपने हिसाब से अपने ब्रांड को चेंज कर लेंगे. We've seen पहले हमारा सिगरेट का जो कंजम्पशन था वो 20% ऑफ द टोटल टोबैको कंजम्पशन था. अब वो 20% से 14% रह गया है. तो बाकी चीजों पे ज्यादा आगे बीड़ी कंजम्पशन हो गई है, टोबैको कंजम्पशन हो गई है, चीजें हैं. और वैसे भी एक और चीज आई हैव अ स्लाइट आइडिया बिकॉज द सिगरेट कंपनीज वर्क मच फर्दर देन द मच अहेड देन द गवर्नमेंट थिंग्स. अगर आप ये कहेंगे कि अगर किसने कहा है कि 10 सिगरेट का एक पैक होना चाहिए, 4 सिगरेट का भी एक पैकेट बन सकता है. सिर्फ उसको एक पैकेजिंग में ही डालना है ना. तो पैकेजिंग तो 2 सिगरेट
सिगरेट की भी पैकेजिंग बन जाएगी, तो उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो बहुत बड़ा, दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। बिकॉज 2 सिगरेट का एक पैक बन जाएगा तो फिर दैट इज नाउ द पर्सन कैन सेल इवन 2 सिगरेट्स इन अ पैक, सो वो 2 सिगरेट्स का पैक हो गया, 5 सिगरेट्स का पैक हो गया, तो द होल पर्पस एंड द होल प्रोसीजर दैट वी विल बी डूइंग द इम्प्लीमेंटेशन वुड बी अ बिग क्वेश्चन मार्क एंड द होल पर्पस विल बी डिफीटेड। एग्जैक्टली नाउ आपने बहुत ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट किया होगा जो बहुत ही ज्यादा एडिक्टेड रहे हैं स्मोकिंग के तरफ। Even I have come across a lot of people who were chain smokers who used to smoke more than one packet of cigarettes daily. So उनके लिए अगर if they want to quit smoking, उनके लिए सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? उनके लिए सबसे पहला स्टेप होना चाहिए, देखिए सिगरेट तो मैंने उनकी भी छुड़ाई है, आपके हिसाब से चेन स्मोकर मोर देन 20 सिगरेट्स अ डे है, हमारे लिए क्लोज टू 100 सिगरेट्स वाले पेशेंट भी हम देखते हैं, 106 इन अ डे। सो किसी के लिए भी भले वो 40 सिगरेट्स पी रहा है, भले 20 सिगरेट्स पी रहा है, द फर्स्ट स्टेप इज कि हमको रिड्यूस नहीं करना है। इफ दे वांट टू क्विट दे हैव टू क्विट अब्रप्टली, रिडक्शन नेवर हैपेंस। दिस आई थिंक ऑल द स्मोकर्स नो, वो सबको पता हो कि they cannot reduce cigarette, reduction is almost impossible, very difficult, and to sustain that reduced level is very difficult. To quit is easy. So the first thing is that they have to understand is quitting is possible, and quit करने के लिए they have to abruptly make it zero. And we have now supports, we have now medications to take care of the cravings, to take care of the urges. We have proper programs in our hospitals that handle the complete mental psyche, and that they handle the person 360 degree. हम हैंडल करते हैं द पर्सन कॉम्प्लेक्सेस, हिज थॉट्स, हिज मिथ्स, हिज एसोसिएशन विद सिगरेट, सब चीजें हैंडल होती हैं, उसकी क्रेविंग हैंडल होती है, उसका विड्रॉल हैंडल होता है, एंड थिंग्स बिकम इजियर। तो सिगरेट की जो क्रेविंग होती है, फिजिकल क्रेविंग है, सिर्फ 3 दिन की रहती है, ओनली फॉर 72 आवर्स। इफ यू कैन हैंडल दो 72 आवर्स एंड इवन इफ यू लॉक योरसेल्फ अप इन अ रूम फॉर 72 आवर्स, द क्रेविंग्स विल डेफिनेटली गो। So we have now supports available, things available, तो छोड़ना आसान है, तो छूटा जा सकता है। We have been doing this for the last 2 decades. Okay. अब जो smokers quit करना चाहते हैं, they often switch to nicotine gums, often they switch to herbal cigarettes. So do you think कि ये काम आता है? Do they really work? देखो दोनों चीजें अलग हैं, निकोटिन च्युइंगम्स अलग है, हर्बल सिगरेट्स अलग है। हर्बल सिगरेट्स एक अलग तरीके का ब्रांड है, वो उससे भी ज्यादा नुकसान करता है जो नॉर्मल सिगरेट पीता है इंसान। सो बिकॉज हर्बल सिगरेट जो है, जो आप वो क्लव सिगरेट्स एंड वो बोल रहे हैं, वो दे डोंट इवन एंड विद 25 पास, मतलब बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है वो, दे आर हेवियर देन द नॉर्मल सिगरेट। एंड आल्सो वेप इज अ मच मोर डेंजर दिस थिंग। वी हैव रिसेंटली बैन्ड वेप, तो वेप इसलिए बैन हुआ था क्योंकि वेप का ज्यादा नुकसान है नॉर्मल सिगरेट से भी। सो द पर्सन वेप में क्या है, देयर इज नो वेस्टेज इन अ नॉर्मल। जब एक पर्सन एक नॉर्मल सिगरेट पीता है तो 85% सिगरेट वेस्ट जाती है, 15% वो कंज्यूम करता है। जब वेप करता है तो पूरा 100% कंज्यूम करता है निकोटिन पॉड से, और उसमें हर 2-2 मिनट बाद करता है, थोड़ी देर में करता रहता है। तो what it has been seen that the health impacts of vaping is much more adverse than the health impact of smoking. Okay. And the one more important thing जो vaping में क्या हो रहा है, they are targeting the young people, the young population. Exactly. They think the young population thinks कि सिगरेट तो old fashioned हो गया, सिगरेट स्मोकिंग पुराने लोगों अंकल्स का काम है। Now they coming in the vapes इतने मॉडल्स में आ गए, इतने स्टाइल्स एंड इतने उसके अंदर आ गया है, मतलब इतना खूबसूरत बना दिया है, like it looks like a pen drive and it's so easy to carry and there is no smell, there is no धुआं। And I have myself been invited in say 10 schools in Delhi जो ये वेप का वो करे, because the students are actually carrying the vapes in their bags and consuming and smoking vape in classrooms itself, and nobody comes to know. Now another very important and very interesting concept is second hand smoking or passive smoking. So ये स्मोकिंग से पैसिव स्मोकर्स को कितना नुकसान होता है? जैसे अगर मेरे रूममेट्स पीते हैं सिगरेट्स थ्रू आउट द डे, तो मैं आई एम अ पैसिव स्मोकर, आई कैन बी कॉल्ड अ पैसिव स्मोकर, तो इससे तो मेरे लिए ये कितना हानिकारक है? आपके लिए उतना ही हानिकारक है जितना वो जो पी रहा है उसके लिए है।
क्योंकि normally a cigarette contains around 4800 chemical compounds and which I call poison and 69 carcinogens जिनसे कैंसर होता है। तो क्या होता है जब आप स्मोक करते हो, जो पैसिव स्मोकिंग है, पैसिव स्मोकिंग को आई वुड से इट इज एनवायरमेंटल टोबैको स्मोक। एनवायरमेंटल टोबैको स्मोक एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। वन इज द एक्सेल्ड मेनस्ट्रीम स्मोक, जो बंदा स्मोक कर रहा है वो बाहर जो धुआं निकाल रहा है वो। दूसरा उसकी सिगरेट के जो लाइटेड एंड से जो निकल रहा है उसको हम कहते हैं साइड स्ट्रीम स्मोक, वो होता है। तीसरा सिगरेट का जो पेपर जलता है वो भी बहुत डैमेजिंग हो जाता है। तो इन तीनों को मिला के बनता है पैसिव स्मोकिंग, ठीक है। ये उससे भी ज्यादा नुकसानदायक है, एक्टिव स्मोकिंग से भी ज्यादा, बिकॉज इसका जो पार्टिकल साइज है, इसका जो बिकॉज सी व्हेन यू स्मोकिंग अ सिगरेट, आप सॉलिड फॉर्म की सिगरेट एक सॉलिड फॉर्म में होता है, तो स्मोक जब आप निकालते हैं तो वो गैस होती है, तो गैस में पार्टिकल साइज छोटा हो जाता है। तो जो सामने जो बैठा है, जो पैसिव स्मोकिंग कर रहा है, वो उसके अंदर उसके लंग्स के अंदर ज्यादा पेनिट्रेशन हो जाती है, उसको भी उतना ही चांसेस हो जाते हैं सारी डिजीजेस का, हार्ट डिजीजेस का, स्ट्रोक्स का एंड ऑल द डिजीजेस दैट आर देयर विद द सिगरेट, उतना ही नुकसान पैसिव स्मोकिंग से भी हो रहा है। ओके। एंड देयर इज वन मोर कंसेप्ट दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड। एक होता है एक्टिव स्मोकिंग, एक होता है, हाँ, एक्टिव स्मोकर इसमें खुश ना हो कि चलो मैं स्मोक कर रहा हूँ और वो साथ साथ सोचे। एक्टिव स्मोकर सबसे ज्यादा पैसिव स्मोक भी अपनी लेके जाता है, दैट इज अ कैच हियर, यू गेटिंग, बिकॉज सबसे ज्यादा वो एक्टिव भी अपनी ले रहा है, पैसिव भी अपनी ले रहा है, तो इज हैविंग डबल द डोज। एंड देयर इज अनदर कंसेप्ट दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज थर्ड हैंड स्मोक। थर्ड हैंड स्मोक क्या होता है? सेकेंड हैंड स्मोक हुआ पैसिव स्मोकिंग, थर्ड हैंड स्मोक हुआ जब आप अंदर कहीं स्मोक करते हैं तो जितना कर्टन्स में और इसमें व्हेन द पर्सन जो स्मोक कर रहा है वो भी हट जाए और जो दूसरा पैसिव स्मोकर भी हट जाए, तो जो अपना कर्टन्स हो गए, अपना जो कपड़ों के अंदर रह जाता है, कारपेट्स के अंदर रह जाता है, उसमें थर्ड हैंड स्मोक रह जाता है, जैसे कार्स के अंदर भी रह जाता है। दैट आल्सो हैज अराउंड 11 कार्सिनोजेंस। ओके, ये मुझे नहीं पता था, एंड दिस इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, थर्ड हैंड स्मोकिंग। क्योंकि कई बार आप देखेंगे किसी भी स्मोकर के उसमें देखिए आप गाड़ी के अंदर स्मेल आती रहती है, उसके कपड़ों के अंदर से स्मेल आ रही है, उसके कर्टन्स के अंदर से आ रही है, उसकी बेडिंग्स के अंदर से स्मेल आ रही है, वो थर्ड हैंड स्मोक है। वो भी हार्मफुल है, वो भी काफी ज्यादा हार्मफुल है। और वेप तो है ही है, सब चीजें ही, इवन हुक्का इज वन मेजर दिस थिंग। हुक्का भी लोग आजकल बहुत ज्यादा कर रहे हैं, हुक्का के इनफैक्ट वेरिएंट्स ही बहुत ज्यादा है, पीपल आर कंज्यूमिंग इट लाइक ये मॉक हुक्का कर रहे हैं। आई डोंट थिंक देयर इज अ कांसेप्ट नेम्ड एज मॉक हुक्का, सब ये मतलब दीज आर ऑल फ्लेवर्ड सब। एनी टाइम व्हेन यू टेकिंग इनकम्प्लीट कंबशन बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो बॉडी के अंदर जा ही रही है। We have a machine by which we measure the carbon monoxide levels, and it has been seen that active smoking का भी उतना कार्बन मोनोऑक्साइड है, पैसिव का भी उतना है, और हुक्का स्मोकिंग वालों का भी उतना ही कार्बन मोनोऑक्साइड बॉडी के अंदर जाता है। तो मैम, लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आपके हिसाब से गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स लेने चाहिए टू प्रमोट द लो कंजम्पशन ऑफ स्मोकिंग इन द सोसाइटी? गवर्नमेंट को सबसे पहले तो अवेलेबिलिटी पे इम्पैक्ट करना चाहिए। Okay. मैं शुरू से बोल रही हूँ इस चीज पे, अवेलेबिलिटी इज वन मेजर फैक्टर। हम लोग एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखा रहे, हम ये चीजें नहीं, पर एडवर्टाइजमेंट कहाँ नहीं दिखा रहे हम लोग, फिर भी सरोगेट एडवर्टाइजिंग तो चल ही रही है हर जगह, ठीक है। गवर्नमेंट को सरोगेट एडवर्टाइजिंग बंद करनी चाहिए, गवर्नमेंट को स्कूल्स के पास नहीं होना चाहिए, सिगरेट्स नहीं होने चाहिए, हमारे लॉ के अंदर भी लिखा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एवरी 50 yards देयर इज अ पर्सन हु इज सेलिंग सिगरेट, दैट इज इंपॉर्टेंट, उसको हमें कंट्रोल करना चाहिए। गवर्नमेंट को प्रोडक्शन पे, मैन्युफैक्चरिंग पे, एडवर्टाइजिंग पे, सब पे, ये सरोगेट एडवर्टाइजिंग पे भी इम्पैक्ट करना चाहिए। एंड देखिए, किसी भी चीज को हैंडल करने के 2 तरीके होता है, एक सप्लाई रिडक्शन, दूसरा होता है डिमांड रिडक्शन, ठीक है। हम सप्लाई पे काम करें, आप समझ रहे हैं, सप्लाई पे काम करें और हम एनफ अवेलेबल करना, सिगरेट डिफिकल्ट बना दें। पैसा बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, पैसा बढ़ा के इफ यू थिंक यू इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ अ सिगरेट, दैट विल मेक एन इम्पैक्ट। एवरी ईयर सिगरेट का कॉस्ट बढ़ रहा है, बट दैट इज नॉट रिड्यूस द नंबर ऑफ सिगरेट, नंबर ऑफ स्मोकर्स इज स्टिल इंक्रीजिंग, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लोगों को जो है अवेयरनेस भी कराए, पर अवेलेबिलिटी का इम्पैक्ट करें, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट वही करेगा। एंड एजुकेशन भी होनी चाहिए, स्कूल्स के अंदर एक
हेल्दी लिविंग का एक सब्जेक्ट होना चाहिए, जिसमें उनको ये पता चल स्कूल के अंदर कि what are the good habits and the bad habits the person, because anybody who's imbibing a habit, वो imbibe करता है in the initial years only. वो जब 10 साल का होता है, 12 का होता है, 14 का होता है, he should know what are good habits. वो हमें inculcate करना चाहिए. हमें प्रिवेंशन पे काम करना चाहिए. जो लोग नहीं स्मोक कर रहे उन पे हमें मतलब वो प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए, और जो लोग स्मोक कर रहे हैं उनके लिए ट्रीटमेंट मॉडल्स जो होने चाहिए स्मोकिंग के लिए, एनफ मेडिकेशंस होनी चाहिए, एनफ सपोर्ट्स होने चाहिए, एनफ सपोर्ट सिस्टम्स होने चाहिए, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द स्मोकर्स दे एक्चुअली वांट टू क्विट बट दे नॉट बीन एबल टू क्विट बिकॉज स्मोकिंग इज एडिक्टिव. सो उनको मेथड मिलना चाहिए, उनको सपोर्ट मिलना चाहिए. जस्ट नॉट सीइंग अ सिगरेट विल नॉट मेक अ डिफरेंस कि हमें कोई ऐड नहीं दिखा है. ऐड तो दिख ही रहा है, हर 50 यार्ड में एक बंदा बेच रहा है, तो उस पर हमें इम्पैक्ट करना चाहिए. एंड हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट देना चाहिए जो लोग स्मोक कर रहे हैं, और जो छोड़ना चाहते हैं उन्हें प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से हमें इसे करना चाहिए. उसे हमें कॉर्पोरेट प्रोग्राम्स भी करने चाहिए. आई एम अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, आई डू लॉट ऑफ ग्रुप थेरेपी प्रोग्राम, आई डू CSR वर्कशॉप्स. कम्युनिटी हमारा एक इनिशिएटिव है जिसमें हम लोग टोबैको फ्री दिल्ली पे काम करते हैं. सो उसमें हम कम्युनिटी के अंदर जाके वी हेल्प पीपल क्विट द टोबैको हैबिट, the tobacco and the smoking habit. So government को ये multi-pronged approach लेना पड़ेगा अगर उसको इस बिजनेस को हैंडल करना है. All right. Well, this new year, people who smokers and people who are chain smokers should make a resolution that they would either quit smoking or they will lower their cigarette intake at least. For starters, lower will not impact. अगर वो क्विट करना चाहे तो ज्यादा इम्पैक्ट. लोअर तो क्या होता है, न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो होती है ना, जितनी न्यू ईयर रेजोल्यूशन हम बनाते हैं हम तोड़ ही देते हैं 2-4 दिन के अंदर. तो हम रिड्यूस करने का रेजोल्यूशन बनाए ना, हम क्विटिंग का रेजोल्यूशन बनाए. और सपोर्ट्स हैं, बिल्कुल क्रेविंग नहीं होगी, बिल्कुल अर्जेस नहीं होंगी, बिल्कुल विड्रॉल्स नहीं आएंगे. छोड़ना बस सिर्फ एक इंटेंशन होना चाहिए कि आई नीड टू क्विट. दैट इज इंपॉर्टेंट एंड इट्स ओनली अ 3-day job and we have enough support systems जिससे आप आराम से सिगरेट छोड़ सकते हैं. एंड क्रेविंग के टाइम पे जब एक कोई सिगरेट छोड़ने के प्रोसेस में अगर जब उनको क्रेविंग होता है तो क्या च्युइंगम चबाने से या कुछ खा लेने से वो क्रेविंग चला जाता है? हमारे पास देखो निकोटिन च्युइंगम्स भी आ रही हैं, निकोटिन के पेस्टल्स भी आ रहे हैं, निकोटिन के पैचेस भी आ रहे हैं. दे वेरी इफेक्टिव. या वी हैव एनफ स्टफ्स इन द किचन इटसेल्फ जिससे क्रेविंग हटती है. पानी पीने से क्रेविंग हटती है. आपका च्युइंगम्स खाने से तो डेफिनेटली हटती है. नॉर्मल च्युइंगम खाने से भी क्रेविंग हटती है. विटामिन C प्रोडक्ट्स लेने से क्रेविंग हटती है. हमारे फ्रूट्स के साथ मतलब हमारे जितनी नेचुरल चीज क्रेविंग हटती है. तो देयर आर एनफ सब्सटेंसेस जिससे क्रेविंग हटती है. कुछ चीजों से क्रेविंग बढ़ती भी है. इफ यू आर अवेयर ऑफ दोस थिंग्स, सो इट मेक्स इट वेरी इजी. बट एंड इट्स ओनली अ 3-day affair, only 72 hours. The physical cravings are only for 72 hours. Rest all is mind. Well, that's very insightful. 3 दिन बस 3 दिन. लोग 30 years सोचते रहते हैं कि मैं छोड़ूं ना छोड़ूं. You know something I need to tell you, a smoker is in a very weird relationship with a cigarette. If you ask a smoker, you want to smoke, he'll say yes. You want to quit? हाँ कैसे छूटेगी? So he wants to smoke, he wants to quit both at the same time. ठीक है? He loves his cigarette as much as he hates it. He hates it as much as he loves it. तो प्यार और मोहब्बत दोनों साथ में है. छोड़ना हर स्मोकर चाहता है. उसको ये समझ नहीं आता मैं कैसे करूं. Exactly. ये अवेलेबल कराना चाहिए गवर्नमेंट को. जो आप पूछ रहे थे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये कि मैं क्या करूं, मुझे छोड़ना है, मैं क्या करूं. वहां पे हमारे पास सपोर्ट्स अवेलेबल होने चाहिए जिससे हम इजीली इसको जो हैबिट को छुड़वा पाए. Exactly. Well, ma'am, thank you so much for joining us on the show. It was lovely speaking to you. Thank you very much. Thank you so much. So that's all the news and scoops I have for you today. This episode was produced by Lalit. This is your newsman Rudrashish Kanjilal signing off. Have a wonderful day ahead and keep listening to ABP Live podcasts. This is an ABP Live podcast.